Today we will start for objective questions in coordinate geometry. Subjective questions and the formula or other things it has been discussed earlier. पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, सर ने काफ़ी कुछ उसमें डिटेल बता चुके हैं, इसलिए हम किसी फार्मूले की बात नहीं करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे. इन बिटवीन द क्वेश्चंस जो भी आएगा उसको हम बीच में डिस्कस करते चलेंगे. ओके, चल. जस्ट यू सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी two things, inequality as well as coordinate. Both are, because in objective questions majority of the questions to be asked in a multiple scale, not in one way. So it is very important, some inequality is there and other things should be a greater than b greater than c greater than 0. What it means? First condition कि A, B, C are positive. A is positive, B is positive, C is positive. Both are, all the three are positive. First thing. Second thing it will be A greater than B means A minus B is positive. B greater than C means B minus C is also positive, and A minus C is also positive. So these two concepts, majority of the student will leave to these one कि अरे what is this, this is unconditional, but immediately we will think it as a mathematical way. What is the meaning of A greater than B greater than C greater than 0? It means all the three A, B, C are positive. First thing. Second thing is A minus B is also positive, because A is greater than B means A B से बड़ा है तो A माइनस बी पॉजिटिव होगा. B ग्रेटर देन C, इट मीन्स B माइनस C इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C मीन्स A माइनस C इज पॉजिटिव. तो दी वन कंडीशन इज ऑल द थ्री आर पॉजिटिव, बट द कंडीशन इज A माइनस B इज ऑल्सो पॉजिटिव, B माइनस C इज ऑल्सो पॉजिटिव, A माइनस C इज ऑल्सो पॉजिटिव. The distance between 1 1 and the point of intersection AX plus BY plus C equals 0, BX plus AY plus C equals 0. Means if I think in figure, then you can see 1 1 is certainly here. The second point is intersection of these two. Point of intersection ये आपको डिस्कस हुआ होगा. To find the point of intersection we solve these equation. आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि how we solve all R, A, B, C, but it is very easily it can be solved. If we subtract it, then immediately we will get X is equal to Y. A minus BX, A minus BX plus B minus AY equals 0. CC has been cancelled. Now it will be used. A minus B is positive. A minus B is positive. B minus A becomes negative. So if I will take the common, then it may be written as A minus BX minus A minus BY equals 0. So divide by A minus B, X is equal to Y. X is equal to Y. Put either in 1 or in 2, any one, then we get AX plus BX plus C is equal to 0, X is equal to minus C upon A plus B. X is equal to minus C upon A plus B.
and x is equal to y. So certainly the coordinate is point of intersection of these 2 points is minus c by a plus b and minus c by a plus b. This is the point Q. This is the point Q. Point of intersection of these two. Otherwise you can solve by any way, by cross multiplication, by comparing the coefficients as you wish. But this is the easiest way to solve. So I have discussed it. Minus cy. Distance between PQ is less than 2 root 2. Distance between these two, P and Q, is less than 2 root 2. Just you see here, this is now the concept will arise. Certainly the PQ passed through the origin, because here is also x is equal to y, here is also x is equal to y, means the line is y is equal to x. This line is y is equal to x. Okay? So if the line is y is equal to x, then certainly it will pass from 0, 0, 2. It is clear? So this is 0, 0. This distance is root 2. This is the fixed point. This is the fixed point root 2. As per question, the PQ is less than 2 root 2. It is given. PQ will be OP plus OQ. OP plus OQ is less than 2 root 2. OP is a root 2. O is 0, 0, P is 1, 1. So OP is a root 2. Root 2 plus OQ is less than 2 root 2. It means OQ is less than root 2. Now OQ. OQ is very easily, it can be observed. Only C root 2 divided by A plus B is less than root 2. OQ, distance formula लगा दीजिए, or you can say if x is equal to y, let this is h, this is h, then it is h root 2. Where h is a, this will be the easiest way. So C root 2 upon A plus B is a less than root 2. Root 2 is positive, so I can divide. A plus B is also positive. It is very important for inequalities. Whatever they use, A is positive, B is positive, it is given. So A plus B is again positive. It means I can transfer. If A and B are negative, then it cannot be go on that side. So C is less than A plus B, or 0 less than A plus B minus C. Inequality changes. A plus B minus C is greater than 0 is the option. Which one option? A plus B minus C greater than 0 means the answer is A. The answer is A of this question. Is it clear? So what is the use of that A is greater than B greater than C? Here, if A, B are negative, then it cannot be shifted on that side. It is a very important point. बोल दो कि कौन है? हाँ कमल बताओ. हेलो. हाँ कमल बोलो. हाँ हाँ वो करा दो उसको. तो ऑप्शन इज A प्लस B माइनस C ग्रेटर देन 0. द ऑप्शन इज A. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वन? आप कॉन्सेप्ट वाइज जरूर समझे कि व्हाई A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C इज गिवन. A is greater than B greater than C is given. Due to that, A plus B is positive, so it can be transferred on that side. If it is negative, you know that if denominator is negative in the inequality, then it cannot be cross multiplied. Cross multiplication is possible only when denominators becomes positive. Okay. Now come on the next question.
स्टिक ऑफ पॉइंटर। अच्छा, अरे पॉइंटर छोड़ो, क्वेश्चन 2 दिखाई देगा, क्या करेंगे? बोल दूं? हाँ, क्वेश्चन 2 इज, अच्छा, द स्ट्रेट लाइन एल दैट इज द एंगल, एंगल नहीं है वो, ध्यान दे लें, एल, ये स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3 - 2, 3, -2 is inclined at the angle 60 degree to the line √3x plus y is equal to 1, √3x plus y is equal to 1, 3 - 2, L will pass from 3, -2, inclined at angle 60 degree to this line, at it L also intersect the x-axis. The L also intersect the x-axis, then the equation of L is, then the equation of L is. Now, just you see, first you make the slope of this line. Slope of this line. Certainly y is equal to -√3x. So, slope of this line is -3 -√3. Hence, inclination means theta. Tan theta becomes 120 degree. Certainly, this line is inclined at an angle of 120 degree from x-axis. Very important point. In the coordinate system, very important thing from the figure, because it is geometry, so certainly we will think from the figures. So you will follow that कि 120 degree inclination, and certainly it will pass from 0, 1. So line is this one. This is our given line. This inclination is 120 degree. Main important point is this one. L will, the straight line L through the point 3, -2. 3, -2 means the point is lies in 4th quadrant. Point is lies in 4th quadrant. 3, -2, certainly like this, let us suppose 3, -2 is here. तो यहां से पास होना है, पहली चीज, इस लाइन से 60 डिग्री बनाना है। तो देखिए दो तरह की लाइन आएंगी, एक तो 60 डिग्री 3, -2 लाइक दिस, ये 60 डिग्री होगा। दूसरी 60 डिग्री की लाइन ऐसे भी आ सकती है। हमें ये लाइन यल का इक्वेशन चाहिए। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस लाइन। अब देखिए ये 120 है, ये क्या है 60 है, ये 60 है तो ये भी आएगा 120। तो एक लाइन तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक लाइन तो आपकी ऐसी वाली रहेगी जो 60 डिग्री बनेगी, दूसरी लाइन ये है तो ये 60 डिग्री है। इज इट ओके? तो इफ दिस इज 60 डिग्री, देन आई विल फाइंड स्लोप ऑफ दिस वन, ये थीटा। तो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थीटा इज ए mod ऑफ θ1 minus θ2, where θ1 and θ2 are inclination. θ1 and θ2 are inclination. Theta is given, angle between both line is 60 degree. θ1 120 degree minus θ2.
So it implies plus minus 60 is equal to 120 minus theta 2. So theta 2 is 120 plus minus 60, that is 180 degree or 60 degree. वन 180 जो बताया मैंने पैरेलल लाइन आ जाएगी, 180 वाली क्या हो गई पैरेलल लाइन. तो आई विल टेक दिस वन बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि यल आल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. यल आल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन सर्टेनली इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. सो थीटा इज 60 डिग्री. तो इंक्लिनेशन आ गया, पॉइंट नोन है, 1 पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा. वैसे ऑप्शन डायरेक्टली हमको पता चल जा रहा है, ये 60 डिग्री है थीटा 2, मीन स्लोप आएगा √3. चारों ऑप्शन में यदि आप देख रहे हैं तो स्लोप √3 केवल आपको बी ऑप्शन में आ रहा है. नहीं, सी में भी आएगा, नहीं सी में नहीं आएगा, बी. अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. स्लोप आते ही आपका ऑप्शन रेडी हो गया, y माइनस √3x प्लस 2 प्लस √. लेकिन मैं एक्चुअल भी कैलकुलेट कर दे रहा हूं. y माइनस y1 मीन्स y प्लस 2, 3 माइनस 2, m √3 x माइनस x1 दैट इज 3 और y इज इक्वल टू x √3 माइनस 3√3 माइनस 2. ये ऑप्शन है. आप देख सकते हैं कि बी आएगा, सब लेफ्ट साइड कर दिया गया है. y माइनस x √3 प्लस 2 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0. सो आवर ऑप्शन इज बी. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मुझे बताना भूल गया. ये थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2. एक्चुअल बेसिक एंगल बिटवीन द लाइंस का फार्मूला यही है. इसी से आपका बनता है tan थीटा इज ए मॉड ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2. एंगल बिटवीन m इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आया है. If from the given line, if I will find the slope and slope is a known angle, then the easiest way to find the angle between them is theta is equal to theta 1 minus theta 2. कैसे आया? यहां tan लगाया, tan थीटा is equal to tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 plus tan theta 1 tan theta 2. tan theta 1 is m1, tan theta 2 is m2, so m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. माड क्यों लगेगा? यहां पर माड है ऑलरेडी. तो ये मेन चीज है कि आई विल फाइंड दैट कि सो मेनी ऑफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग दिस वन कि हाउ इट विल कम्स. वैसे तो बुक्स में आपको फार्मूला ही डायरेक्ट दे दिया गया है कि इफ द इंक्लाइंड एंगल दिस वन देन इक्वेशन ऑफ लाइन. बट माई आइडिया इज डोंट रिमेंबर मच. Go to the concept, it will be better. ये साफ दिखेगा ना? Come on, the next one. Third, the locus of the image of the point 2, 3 in the line this. Line is 2x minus 3y plus 4 plus k into x minus 2y plus 3 equals 0. Image. If this is any line, that is a given line 1. Whatever the given line, I have drawn it. 2, 3 P. लोकस चाहिए हमें
इमेज ऑफ दिस पॉइंट। जिसका लोकस फाइंड करना हो जिस पॉइंट का, इमीडिएटली वी विल टेक एच के आर पी क्यू आर एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट अननोन यू विल टेक। I want to find the locus of the image of the point. Let us suppose image of P is P dash. Image of P is P dash. Suppose the coordinate of P dash, यच कामा के ज़्यादातर ट्रेडिशनली हम लोग यच के लेते हैं, बट आई विल चेक दैट के इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, सो बोथ द के कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, दोनों के एक ही हो जाएगा। इसलिए हम बेटर है कि जिसका लोकस फाइंड करना है उसे यचके के बजाय हम यचकामा पी ले लें, या कंसेक्यूटिव लेना हो तो ए बी ले लें, पी क्यू ले लें, एज यू विश। तो लेट पी डैश इज पी क्यू, आई हैव टेकन पी क्यू इमेज। अब जरा इमेज की कंडीशन सोचें क्या होती है। इमेज along the line, what is the means image along the line? Means there is a mirror, the point P is here, P dash is here. If we join these two, then the midpoint of this, because for the image in the physics you all of you are knowing, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है। इट मीन्स दिस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश मीन्स पी प्लस 2/2 क्यू प्लस 3/2 एंड दिस पॉइंट वेयर लाइज? It lies on the given line. It lies on the given line. Very important point. Q कहां है? इस given line 1 पर है, तो क्या करेगा? ये सेटिस्फाइड करेगा, ये उसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करते ही K की वैल्यू हमें PQ के टर्म में आ जाएगी। K की वैल्यू PQ के टर्म में आ जाएगी। 2x means only P plus 2. 2x minus 3y minus 3q plus 3/2 plus 4 plus k into x P plus 2/2 minus q plus 3 only plus 3 is equal to 0. Is it clear? K की वैल्यू फाइंड करें। देखिए यहां रहा है 2p plus 4 minus 3q minus 3q minus 3 नहीं minus 9 plus 8 प्लस k इंटू अगेन 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, p प्लस 2 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। माइनस q माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 हैज बीन कैंसिल, तो इट बिकम p प्लस 2 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2p माइनस 3q plus 4 plus 8 minus 9, that is 12 minus 9, 3 plus k, यहां भी देखिएगा p minus 2q, p minus 2q plus 2 is equal to 0. Again 3 cancel. The value of k is minus 2p upon p minus 2q plus 2. The value of k is there. हमने पूरा कैलकुलेशन शो किया है, एज इट इज यू विल सॉल्व इट। द वैल्यू ऑफ k इज minus 2p. वन कंडीशन से k आ गया। व्हाट इज द अदर कंडीशन? अदर कंडीशन इज
these two PP dash is certainly perpendicular to line 1. The line segment joining object to image, the line segment joining object to image is perpendicular to the mirror. Means PP dash is perpendicular to this line. What is the mathematical condition? Their slope का प्रोडक्ट -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप हम इस लाइन का फाइंड करें, स्लोप पीपी डैश का फाइंड करें। स्लोप ऑफ पीपी डैश 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप ऑफ पीपी डैश आप देखेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 दिया गया। स्लोप ऑफ गिवन लाइन स्लोप ऑफ गिवन लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लीजिए। आप देख रहे हैं कन्वर्जन में आ रहा है। देयर इज ए 2x kx, तो इट बिकम k प्लस 2x। यहां देखें -3y माइनस 2ky माइनस 2k प्लस 3y प्लस 4 प्लस 3k। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सो इट बिकम k प्लस 2 अपॉन 2k प्लस 3। k प्लस 2 y इक्वल टू mx प्लस c करेंगे, k प्लस 2 अपॉन 2k प्लस 3। इसको भी आप किस में बदल लें? PQ में, क्योंकि हमें इक्वेशन PQ में चाहिए। रख देंगे वैल्यू Q माइनस 3 अपॉन P माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू Q माइनस 3 अपॉन P माइनस 2 प्लस 2। दिस बिकम Q माइनस 3 प्लस 2P माइनस 4, Q माइनस 3 प्लस 2P माइनस 4 अपॉन 2Q माइनस 6, P माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2Q माइनस 6 प्लस 2P माइनस 4, दैट इज 2P प्लस Q माइनस 7 अपॉन 2P प्लस 2Q माइनस 10। ये आ गया। अब कंडीशन लगा देंगे m1 m2 इज -1, m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है, तो m1 इंटू m2 इज -1। जैसे ही आप करेंगे एक इक्वेशन आ जाएगा, दैट इक्वेशन इज फाइनली सर्किल ऑफ रेडियस √2। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में कई चीजें एक साथ मिक्स हुई, एक तो लोकस, दूसरा इमेज, तीसरा सर्किल की भी बात आ गई। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं आपको जेईई मेंस में, वो कई टॉपिक्स को मिला के होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं स्ट्रेट लाइन में कोई दूसरा चीज़ नहीं आएगा। यहाँ आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन के साथ सर्किल को ऐड किया, क्योंकि लोकस की बात किया है तो पहला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें, लोकस क्या होता है। जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना हो उस पॉइंट को कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मान ले, अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, PQ मान लीजिए, HK मान लीजिए, लेकिन ऐसा कोई सिंबल यूज करिएगा जो आपके क्वेश्चन में ना आया हो। तो HK हमने अवॉइड कर दिया, HK नहीं आ सकता, इसीलिए हमने PQ ले लिया। आप अल्फ़ा बीटा ले सकते थे, जो भी चाहे ले ले। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसे हमें कोई अननोन लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? इमेज का। इमेज में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मिरर पर दो चीजें, परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर भी होगी, बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब मिड पॉइंट कहां लाइज करेगा? मिड पॉइंट
उसी मिरर पर लाइज करेगा, माने उस लाइन पर लाइज करेगा तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। वहां से आपने तुरंत देखा के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू जैसे ही आ गई तो हम दो काम कर सकते थे, के की वैल्यू यहां भी रख सकते थे, उसके बाद सॉल्व करते, लेकिन हमें ज़्यादा आसान यहां से पड़ता है। हमें स्लोप का ही मतलब था, स्लोप निकाल लिए। स्लोप निकाल करके m1 m2 = -1 बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इमीडिएटली वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। सर्किल है, ये सर्किल है जिसकी रेडियस √2 हो रही है। फोर्थ तो आप बहुत आसान है, इसलिए आप कर लेंगे। फिफ्थ की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि सभी क्वेश्चंस बताना पॉसिबल भी नहीं है। PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस PQR एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1, -1 एंड पैरेलल टू PS। ध्यान से देखें इसको। द कोऑर्डिनेट इज गिवन PQR. P is given as 2, 2. Q is given as 6, -1. And R is given 7, 3. ठीक। हमें किस लाइन को चाहिए? PS is the median. Median means line segment joining vertex to the midpoint of opposite side. What is the median? मीडियन का देखिए, अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम बदल रहे हैं उसको। लैंग्वेज फॉर्म में तो मीडियन कह दिया, काम खत्म। क्या है? PS मीडियन है। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मैंने तुरंत मैथमेटिकली आया, यस इज ए मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ QR। तो QR का मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, x1 + x2/2, 6 + 7 दैट इज 13/2, -1 + 3 2/2 दैट इज 1। PS आ गया। अब लाइन कौन सी चाहिए हमें? वहां देखिए आप, PS इज द मीडियन ऑफ दिस। The equation of line passing through 1, -1 and parallel to PS, देखिए ये PS है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन चाहिए। ये पास करती है 1, -1 से। एक पॉइंट नोन है, यदि इसका स्लोप आ जाए तो तुरंत इक्वेशन आ जाएगा। इसका स्लोप आ जाए तो 1 पॉइंट फार्मूला लगाते ही आ जाएगा। इसका स्लोप कैसे निकले, उसके लिए कंडीशन क्या दिया? दिस इज पैरेलल टू दिस वन। पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप PS के स्लोप के इक्वल होगा। पैरेलल में स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर में स्लोप माइनस रिसिप्रोकल। पैरेलल में इक्वल, परपेंडिकुलर में माइनस रिसिप्रोकल, -1/m। तो PS का स्लोप निकालना, P का कोऑर्डिनेट नोन, S का कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ PS लगा दे फार्मूला, y2 - y1 दैट इज 2 - 1 x2 - x1 2 - 13/2 दैट इज 1/4 - 13 दैट इज -9/2। तो 2 पर चल गया, -2/9। अब तो बहुत आसान हो गया, स्लोप भी मालूम, पॉइंट भी मालूम, तुरंत फार्मूला लगा दिया, 1 पॉइंट फार्मूला, y - y1 = m × x - x1। y - y1 = -2/9 x - 1। 9y + 9 = -2x + 2 that is 2x + 9y
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन इज बी। तो यहां देखिए फिर वही एक दो कॉन्सेप्ट आए, एक तो मीडियन क्या है, दूसरा पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, तीसरा 1 पॉइंट फार्मूला। माने जेई मेंस में आप देखेंगे कि कहीं भी वो एक्सेस बात नहीं जाते। वॉट एवर द कोर्स गिवन इन द सीबीएसई दे विल नॉट डेविएट फ्रॉम दैट वन। ऑल द कॉन्सेप्ट, थोड़े क्वेश्चंस में मिक्सिंग जरूर हो जाएगी। तो जेई मेंस के लिए आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर रखें और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिफ्थ हो गया, 6। चलो 6 भी थोड़ा अल्फाबेटिकल है, इसलिए हम बात करेंगे 6 की। लेट ए बी सी एंड डी बी द नॉन जीरो नंबर्स, बी द नॉन जीरो नंबर्स। इनमें से कोई भी नंबर जीरो नहीं है, बट में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। जैसे पहले क्वेश्चन में था सब पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ कहता है नो कंडीशन इज गिवन, ओनली द कंडीशन इज नन ऑफ देम इज जीरो। वो इसलिए दिया कि यदि कोई जीरो नहीं है तो ये इक्वेशन में किसी लाइन के पैरेलल नहीं होंगे। कुल मिला के यह कहना है इनका। एक लाइन लिखनी पड़ेगी भाई में, चलो है हमारे पास 4ax प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0, 5bx प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0। ए बी सी डी आर नॉन जीरो, मीन्स लाइन नाइदर इट पास फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि सी और डी जीरो नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं होगी। ए बी सभी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं होगी। तो दो कॉन्सेप्ट आ गया कि नाइदर दिस लाइंस आर पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस नॉर इट पास फ्रॉम ओरिजिन। लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहां बात कर रहा है भाई कि ए बी सी डी बी द नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दीज टू लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। अब पहले इसका हम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मीन्स यहां आएगा। यहां आएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। और दूसरी चीज भी कह रहा है कि ये पॉइंट दोनों एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पर है, दोनों एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पर है। माने जितनी डिस्टेंस ये है, यदि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल है। माने यदि हम इसको h कहें तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h, वेयर h इज ए पॉजिटिव। देखिएगा उस लैंग्वेज को हमने मैथमेटिकली तुरंत बदला, उस लैंग्वेज को मैथमेटिकली हमने तुरंत बदल दिया। क्या कह रहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, और दूसरा कह रहा था दोनों एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। माने व्हाट एवर दीज टू डिस्टेंसेस आर सेम, तो न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है। या तो ये 1, -1 होगा, 2, -2 होगा, 3, -3 होगा, तो मुझे पता नहीं अभी, तो हमने कर दिया h, -h कर दिया। मैंने दोनों के सम ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 आएगा। अब देखिएगा मैंने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सम क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही लगा करके हमें तुरंत कंडीशन मिल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, चलो हम भी निकाल देते हैं भाई। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे ज्यादा आसानी दिख रही है। यक्स अपान, वो भी एक चीज बता दूंगा,
यक्स अपान 2AD माइनस 2BC इज इक्वल टू y अपान 5BC माइनस 4AD इज इक्वल टू 1 अपान 8AB 4 to the 8AB माइनस 10AB। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। कुछ लोगों को यहां -1 लगता होगा, सब तो -1 नहीं लगाए। कई बुक्स में मैंने देखा कि वहां -1 से है, दे हैव रिमेंबर -1 से नहीं। आप देखें जब इसको बंद करें तो आगे बढ़ेंगे 2AD माइनस 2BC। जब y को बंद करेंगे तो हम आगे से लिए हैं 5BC, लेकिन जहां -1 रहता है वो यहां से लेता है। तो बहुत क्लियर करें कि हमें यही आसान लगता है, इसलिए मैंने ये किया। जिसको -1 वाला हो -1 वाला करें, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेन चीज आपको यहां से निकालना था कोऑर्डिनेट। यहां से देखिए यक्स आ गया 2 कॉमन, AD माइनस BC अपान माइनस 2AB। y आ गया 5BC माइनस 4AD अपान माइनस 2AD। ये हो गया y की वैल्यू। माने ये h है तो ये माइनस h है, यदि ये h है तो माइनस h है। उससे ना निकाल के हम कर रहे हैं सम ऑफ दीज टू इज 0। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का सम क्या आना चाहिए? 0। उससे तुरंत करिए, आंसर आ गया। x प्लस वाई 0 लगा दिया तो देखिएगा 2AD माइनस 2BC प्लस 5BC माइनस 4AD इज इक्वल टू 0। ये आया 3BC माइनस 2AD इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में आप खोज दीजिए 3BC माइनस 2AD इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, 7th। मेन लैंग्वेज को मैथमेटिकल बदलना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे खास बात ये होती है कि उसको क्वेश्चन को थोड़ा वो ट्विस्टेड किए रहते हैं, उसी क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकल फॉर्म सोचना। देखिए यहाँ एक मैथमेटिकल फॉर्म आया होगा जो ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि सम ऑफ दी बोथ द कोऑर्डिनेट इज 0। यदि ये लिख देते तो ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन उसको उन्होंने घुमा दिया कि ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर, तो पहले इन सेंटर की आप फार्मूला सोचें। खाली x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इन सेंटर का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। I hope it has been discussed the formula of in center, where a, b, c are distances, sides की length, x1, y1, x2, y2, x3, y3 are the coordinate of your vertices। लेकिन डायरेक्ट वर्टिसेस नहीं दिया। डायरेक्ट दिया होता तब तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 सब मालूम था। उसके बजाय इन्होंने दे दिया द मिड पॉइंट। फिर देखिएगा हम फिगर से ही तुरंत समझाएंगे, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ता, लेकिन फिगर से तुरंत समझ में आ जाएगा कि वर्टेक्स इसके क्या होंगे। मिड पॉइंट कहाँ है? 0, 1, 0, 1 पक्का है, यहां होगा 1, 0, 1, 0 ये होगा, एंड 1, 1 एंड 1, 1 ये आया 1, 1।
ये तीनों मिड पॉइंट हैं, ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा है वो जरा देखना है हमको। यदि ये मिड पॉइंट है 1 0 तो पक्का है कि अगला हो जाएगा 2 0, ये देखिए, और एक आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0 2, आगे तीनों पॉइंट, माने दिस इज द ट्रायंगल। ये देखिए, माने वर्टेक्स ए बी सी, ए आ गया 0 0, बी हो गया 2 0, सी हो गया 0 2, इमीडिएटली आ गया। क्वेश्चन थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अदरवाइज ये दूसरे कोऑर्डिनेट में दिया होता तो निश्चित रूप से हमें सॉल्व करना पड़ता कि x1 + x2/2 एक आता, y1 + y2, फिर दोनों को ऐड करते माइनस करते, दैट विल बी लेंथ। लेकिन यहां फिगर से हमें देखिए तुरंत कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आप देख सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट 1 0 आ रहा है, ए सी का मिड पॉइंट 0 1 आ रहा है, और बी सी का मिड पॉइंट 1 1 आ रहा है। ओरल निकल गया। अब हमें इसमें रख देना है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट की वो बात कर रहा है, इसलिए पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए आ जाएगा, ए माने बी सी 2√2, डिस्टेंस बिटवीन 0 2 एंड 2 0 √4 + 4 दैट इज 2√2। बी वर्टेक्स बी का अपोजिट, वर्टेक्स बी का अपोजिट माने 0 2 और 0 0 के बीच डिस्टेंस 2। सी का अपोजिट दैट इज ए बी, ये भी देख रहे हैं 2। तो ए आ गया, बी आ गया, बी है हमारा ए सी और सी है हमारा ए बी। तो ए बी सी तो आ गया। x1 है 0, x2 है 2, x3 है 0। अब यदि x1 x3 0 0 हो गया तो ये देखिए हो गया 0। क्यों हम कैलकुलेट करने जाएं? x1 भी 0 है और x3 भी 0 है, तो क्यों वहां रखने जाएं अननेसेसरली लंबा करने के लिए। सीधा आंसर हाजिर है, bx2, b की वैल्यू है 2, x2 की भी वैल्यू 2 अपान a + b + c, 2 + 2 + 2√2, 4 + 2√2, 2 कॉमन आ जाएगा, टू अपान 2 + √2, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में मैंने देखा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो रेशनलाइज कर लीजिए भाई, मैंने 2 - √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 - √2 अपान 2, a + b, a - b, a² - b², 4 - 2 दैट इज 2, 2 2 कैंसिल, 2 - √2 इज द आंसर, मीन्स ए ऑप्शन इज देयर। तो देखिए क्वेश्चन इन सेंटर निकालना थोड़ा लंबा काम होता है, लेकिन इसको इन्होंने इतना आसान कोऑर्डिनेट्स दे दिया था कि वर्टेक्स हमको ओरल आ गया, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, 2 कोऑर्डिनेट 0 थे, ए बी सी माने लेंथ की ओरल आ जा रही है। अब इसमें लगे सोचने हम कि नहीं सर इन सेंटर तो बड़ा लंबा काम होता है, उसको निकालने में तो बहुत टाइम लगता है। तो क्वेश्चन फ्रेम करना है तो कोऑर्डिनेट्स को उस हिसाब से मैनेज कर दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर अर्थ क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, द रे ऑफ लाइट along दिस लाइन, देखिए कुछ इसको फिजिक्स से लिंक कर दिया। रे ऑफ लाइट x + √3y = √3।
gets reflected upon reaching the x-axis. Gets reflected ये लाइन कहां से पास कर रही है? देखिए, तुरंत हम सोचें कि एक बार x की वैल्यू 0 कर दें तो y आ गया y1, y आ गया 1, और दूसरी बार यदि y को 0 कर दें तो x की वैल्यू आ गई √3। माने ये पास करेगा 0,1 एंड √3 0 से, 0,1 एंड √3 0, मैंने थोड़ा अधिक होगा उससे, ये हो गया √3 0, ये हो गया 0,1, माने रे हमारी ऐसी आई। अब यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल है, जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, बोथ द एंगल्स आर सेम। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट √3 0 से होके जाएगा ही, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही, माने यदि इसका हमें स्लोप आ जाए तो काम बन जाएगा, स्लोप आ जाए तो काम बन जाएगा। स्लोप निकालने के लिए पहले गिवन लाइन का स्लोप और इंक्लिनेशन, गिवन लाइन का स्लोप आप देख रहे हैं -√3, नहीं -1/√3, स्लोप ऑफ दिस लाइन -1/√3 means inclination 150 degree. Tan theta is -1/√3. Tan theta is -1/√3 means the theta is 150 degree. माने ये पूरा एंगल 150 डिग्री है। देन दिस एंगल कितना हो गया? 30। ये 150 तो ये एंगल 30, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, तो ये थीटा प्लस 30 90 होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो थीटा हो गया 60। यदि ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया? 30। तो इंक्लिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंक्लिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे (30 डिग्री). सो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 1/√3। अब स्लोप आ गया, एक पॉइंट आ गया, इक्वेशन आ जाएगा 1 पॉइंट फार्मूला से, y minus y1 that is y minus 0 is equal to m x minus x1 √3। √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, y √3 is equal to x minus √3। आप देख लें कौन सा ऑप्शन है। y √3 is equal to x minus √3, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। 9th में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है भाई, शार्टेस्ट है, शार्ट कट नहीं है वो, शार्टेस्ट। तो ऑल ऑफ यू विल करेक्ट दिस, द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। थोड़ा करेक्ट करवा भी देना वहां, नोट चाहो तो कर लो 9th में ना। शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने कई चीजों को मिक्स कर दिया। एक तो पैराबोला भी ला दिए, लाइन भी ला दिए, और यहां मैक्सिमा मिनिमा भी ला दिए। शार्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया मिनिमम डिस्टेंस,
माने पक्का है कि वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो एक तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का काम करना पड़ेगा, दूसरा हमको यह है शॉर्टेज माने मिनिमम का, दूसरा पैराबोला का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चंस लग पाएगा। पैराबोला हरदम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में गिवन है यहां, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर रहेगा। यह है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। शॉर्टेस्ट है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, SHORTEST ना, कट हटा के EST जोड़ना है। तो दिस इज द y स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वो तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक, a की वैल्यू यहां कितनी है, 4a की वैल्यू 1 हुई तो a हो गया 1/4, a हो गया 1/4। जानते हैं पैराबोला पर कोई पॉइंट होता है AT स्क्वायर अपॉन एंड कामा 2AT, AT स्क्वायर एंड 2AT। ये आपको पैराबोला में बताया गया होगा कि कॉमन पॉइंट और एनी पॉइंट इन ए पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नहीं हुआ तो आप नोट कर लें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पॉइंट होता है AT स्क्वायर 2AT। आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड करेगा हरदम। y स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, 4a इंटू AT स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर t स्क्वायर। सो आई कैन से AT स्क्वायर 2AT इज ए पैराबोलिक फॉर्म ऑफ दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं, इसको पैराबोलिक फॉर्म बोलते हैं। x इज AT स्क्वायर, y इज 2AT। तो AT स्क्वायर a की वैल्यू 1/4 तुरंत आ गई, तो हमने पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लिया, a की वैल्यू 1/4 लिया तो आ गया t स्क्वायर बाई 4, 2AT 2 इंटू 1/4 दैट इज बाई 2 आ जाएगा, t/2, t/2। ठीक है, x t स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज t/2। ये आपका आ गया पॉइंट हमको। अब कहता है एक लाइन भी दिया है, y माइनस x इज इक्वल टू 1। ये मान लीजिए लाइन है y माइनस x, तो ये कहां से जा रही है, यदि 45 डिग्री पर बनेगी, मान लीजिए ये लाइन गई, कट नहीं करेगी, कट करती तब तो शॉर्टेज डिस्टेंस पक्का 0-0 हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करके हम चेक नहीं करेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो। ये देखिए, ये पॉइंट है हमारा t स्क्वायर बाई 4, t/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस लाइन। यानी यदि ये P है, ये Q है, तो PQ इज the perpendicular distance from P. I am not writing this one, but you understand this. Always you are knowing the shortest distance is a minimum distance, perpendicular distance is the minimum distance, so minimum distance is the perpendicular distance from t square by 4 t/2 to the given line. लगा दीजिए भाई, उसको तुरंत आ जाएगा आपका y की वैल्यू t स्क्वायर बाई 4 माइनस x t/2 -1 अपान √1 + 1। PQ को मैं s से डिनोट कर दूं
एलसीएम आ जाएगा 4, नीचे आ गया 4√2 टी स्क्वायर -2t -4। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक कंडीशन है, dy/dx y = fx फॉर मिनिमम वैल्यू f'(x) is 0, फॉर मिनिमम वैल्यू f'(x) is 0। तो यहां x में नहीं, y की जगह s है, x की जगह t है, तो हम ds/dt 0 कर देंगे। ds/dt 2t - 2 is 0, t = 1। t = 1 पर either it is maximum or it is minimum, so second derivative फाइंड कर लेंगे। second derivative you are getting positive 2 which is greater than 0, so at t = 1 distance is minimum, so we find yes minimum। उसमें t की वैल्यू 1 रख दीजिए। 1 - 2 - 4 अपॉन 4√2 mod, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4 - 2 - 6 -5/4√2, that is 5/4√2 is the minimum distance। कहीं गड़बड़ हो गया भाई? the shortest distance y - x - 1, y is a t²/4 -t/2 t² -2t - 4/4√2। t = 1 सही है, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गलती है, बट इट्स ऑप्शन इज 3√2/8, 3√2/8। ये 3 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा कहां गलती हुई। 3√2/8 समवेयर इन कैलकुलेशन इट में बी द मिस्टेक्स ओनली। तो आपने देखा कि इसमें भी कई टॉपिक्स को मिक्स कर दिया गया है। सो मेनी टॉपिक्स हैज बीन मिक्स्ड। Next is question number 10. The lines this and this intersect each other in the first quadrant. Line x + y is equal to mod A. A may be positive, may be negative, लेकिन यहां पर mod A माने यहां पर हमें पॉजिटिव वाली ही वैल्यू लेनी है। ax - y is equal to 1. Intersect each other in the first quadrant. Intersect each other in first quadrant. Then certainly, then set off all possible values of the A in the interval. First quadrant. What is the meaning of first coordinate? X and Y both are positive. X coordinate, one point of intersection of these two becomes positive. X coordinate is positive as well as Y coordinate is positive. So I will solve it. सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं क्या आएगा। ऐड कर दीजिए पहले 1 + ax, 1 + ax is equal to mod A + 1. So x coordinate is mod A + 1 upon A + 1, which is greater than 0. Which is greater than 0. So numerator is certainly positive because it is mod A. Means for positiveness it is essential that the denominator is also positive. So I can write A + 1 greater than 0 means A is not equal to 0. Denominator cannot be 0. So A + 1 greater than 0 means A is greater than -1. The one condition is there.
पता चला इतना ही सॉल्व करके आपने -1 टू इन्फिनिटी पर टिक लगा दिया। लगा सकते हैं भाई, ए की वैल्यू ग्रेटर देन -1, पता चला डी ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया, दूसरा क्वाड्रेंट निकालने की जहमत ही नहीं किया। बट इट इज वेरी इसेंशियल, ऐसा हो सकता है कि सेकंड कंडीशन कुछ दूसरी आ जाए, तो हम x की वैल्यू यहां रखें, y फाइंड करें। इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x, देन आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू mod a माइनस x, दैट इज mod a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, which comes again a plus 1, LCM, a mod a plus mod a माइनस mod a प्लस 1। ये देखिए y is a mod a upon a plus 1, which is also पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों निगेटिव हो जाएं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं। दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि पहली कंडीशन में मैं कह चुका हूं कि डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव। तो a प्लस 1 पॉजिटिव है, मीन्स न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर पॉजिटिव कब होगा? mod a तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ द टू थिंग्स विल बी पॉजिटिव व्हेन आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो कोई बात नहीं है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, माने a इज ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन x पॉजिटिव तब होगा जब a ग्रेटर देन -1 हो, y ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब a पॉजिटिव हो। माने दोनों को जो सेटिस्फाइड किए, दैट विल बी आवर आंसर। दोनों को सेटिस्फाइड करने वाले कौन से सही होंगे? a ग्रेटर देन 0। जो 0 से बड़ा होगा वो निश्चित रूप से -1 से भी बड़ा होगा। अदरवाइज आप रियल नंबर लाइन से सोच सकते थे 1 2 3 -1 -2 ग्रेटर देन -1। देखिए पहली कंडीशन है इस तरफ की, राइट साइड ऑफ -1। दूसरी कंडीशन कहता है ग्रेटर देन 0, इधर दोनों में कॉमन कौन सा आया? ग्रेटर देन 0। सो आवर आंसर इज 0 से ग्रेटर, बट इंटरवल में पूछा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। गलती यही होती है कि कोई एक, चूंकि x की वैल्यू आसानी से निकल रही थी, पता चला x कोऑर्डिनेट निकाले और उसी पर हमने -1 लगाया और -1 इन्फिनिटी पर आंसर लगा के चले आए। -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है। सो इट इज वेरी इसेंशियल कि बोथ द कोऑर्डिनेट आई विल फाइंड फ्रॉम वन ऑफ द कोऑर्डिनेट नहीं होगा, न तो x से हुआ, y से भी नहीं होता। y से होता तो ये ग्रेटर देन 0 आप लिख आते, ऑप्शन सही था, 0 इन्फिनिटी बना देते, बाय द वे सही होता आपका, माने गलती से सही हो जाता। इन जनरल हमें ध्यान देना है, देयर आर टू कंडीशन, देन बोथ द कंडीशन टू बी कैलकुलेटेड। दो कंडीशन दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, इसका मतलब x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों कंपल्सरी है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इफ वी आर कमिंग फॉर द 11th, I will not solve all these, but hint I will give for 11th. A is 2, -3, B is -2, 1 are the two vertices of a triangle. A 2, -3, B -2, 1
are two vertices of a triangle, and third vertex C, it is not given. What he say? It moves on the line 2x plus 3y, moves on the line 2x plus 3y is equal to 9. ठीक है, द टू वर्टेक्स गिवन है, थर्ड वर्टेक्स कहता है आर टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, थर्ड वर्टिसेस मूव्स ऑन द लाइन, माने यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. देन लोकस ऑफ द सेंट्रायड. अभी पीछे लोकस की बात हमने किया था. सर्टेनली आई विल टेक, जिसका लोकस फाइंड करना है. सेंट्रायड का मतलब यह है मीडियन का मिड पॉइंट्स जहां मीट करते हैं, दैट इज ए जी. x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3. हम इसको क्या कर दें, एच के सपोज कर लें, एच के सपोज. जिसका भी लोकस निकालना होता है उसे हम एच के अल्फा बीटा पी क्यू ए बी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सपोज किया जाता है और इसी में रिलेशन निकालना होता है. तो सेंट्रायड नोन हो गया, ये पॉइंट नोन नहीं है. अब इसको भी कुछ भी मान लीजिए अल्फा बीटा है. सेंट्रायड ऑफ एबीसी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, माने h इज इक्वल टू x1 इज ए 2, x2 इज ए -2 प्लस अल्फा बाई 3, अल्फा बाई 3. सो अल्फा इज ए 3h, अल्फा की वैल्यू आ गई 3h. x1 प्लस x2 प्लस x3/3 is a x coordinate of centroid. Y coordinate, that is k, y coordinate of the centroid is y1 plus y2 plus y3/3 minus 3 plus 1 plus beta by 3, or 3k is equal to beta minus 2. 3k is equal to, ठीक है. तो हम यहां से बीटा की वैल्यू, हाँ बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. बीटा इज ए 3k प्लस 2. अल्फा आ गया, बीटा आ गया. अल्फा बीटा कहां लाइज करेगा, इस लाइन पर. तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाइड करेगा. सेटिस्फाइड करा दीजिए. 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 9. अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा. 2 अल्फा मीन्स 6h, 3 बीटा प्लस 9k प्लस 6 इज इक्वल टू 9, दैट इज 6h प्लस 9k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड हो रहा है. 2h प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. लोकस के लिए वेरिएबल पॉइंट्स को x y बदल दें. 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, नॉट माइनस 1. इट हैज बीन शिफ्टेड. ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन कहां शिफ्ट हो रहा है. अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द लास्ट ईयर्स. अभी तक के जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चंस थे स्ट्रेट लाइन से आए हुए, ऑल दीज आर कंबाइंड टुगेदर. आपको ये लग रहा होगा कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता जो बियॉन्ड एनसीईआरटी बुक्स और बियॉन्ड द सीबीएसई सिलेबस हो. ऑलवेज इट विल बी विद इन आवर सिलेबस, नथिंग टू बी यूज्ड. The 12 is, the line L is x by 5 plus y by b is equal to 1. It will pass from 1332. यही है ना.
द लाइन L गिवन बाई x upon 5 plus y by b is equal to 1 passes through the point 13, 32. The line K, the other line is K, which is parallel to L, इसके पैरेलल है। अब जरा इसको हम मैथमेटिकली बताते हैं। यदि इसके पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। कहता है ना K इज ए पैरेलल टू L, देखिएगा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यही ना करा, K इज ए पैरेलल टू L, द लाइन L इज गिवन बाई दिस एंड इट पास फ्रॉम 13, 32, द लाइन K which is another line parallel to the L, और K का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ K इज आल्सो गिवन x by c plus y by 3 is equal to 1. If the lines are parallel, then their slope will be equal. Then their slope will be equal. तो दोनों की मैथमेटिकल बात आपकी आ गई। ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इसी के पैरेलल K है और K का इक्वेशन यह है। तब आगे की बात वो कर रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K, डिस्टेंस बिटवीन L एंड K, डिस्टेंस बिटवीन L एंड K पूछा गया, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। इफ द इक्वेशन इज ax plus by plus c1 is 0, ax plus by plus c2 is 0, then the distance between these two, I hope you are knowing, mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. The line L is ax plus by plus c1 is 0. This is the line L. This is the line K. If both the lines are parallel, then certainly the coefficient of x are equal and y are equal. Not necessarily equal, but it may make as equal. ये हो सकता है 2x माइनस 3y हो सकता है 4x माइनस 6y हो, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 2x माइनस 3y बन जाएगा। तो इट इज इसेंशियल दैट फॉर पैरेलल लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस we will find by the formula mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. But before using this, it is essentially this term ax plus by are same. अब देखिए उसको पहले इस फॉर्म में बदले जाएं दोनों लाइन को, माने b और c की वैल्यू किसी तरह से निकाली जाए। b तो तुरंत आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? इट विल पास फ्रॉम 13, 32, 13, 32 से पास हो रहा तो सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करते ही आपको b की वैल्यू आ जाएगी -20, b की वैल्यू आ जाएगी -20। बहुत इजी कैलकुलेशन, 13/5 प्लस 32/b इज इक्वल टू 1, 32/b इज इक्वल टू 1 माइनस 13/5 minus 8/5, so b is equal to 32 into 5 upon minus 8 minus 20। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए उस फॉर्म में, तो क्या आ गया? x upon 5 माइनस, क्योंकि b की वैल्यू निगेटिव है, y upon 20 इज इक्वल टू 1। 20 एलसीएम आ जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस 1। अब कहता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यल और के पैरेलल हैं। यदि यल और के पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। इसका स्लोप देखिए 4 आ रहा है, इसका स्लोप कितना आया? 4। y इज इक्वल टू 4x प्लस 20, तो क्या आ गया? 4। इसका स्लोप निकालें। इसका स्लोप निकालने के लिए
y की वैल्यू उधर जाई तो -3/c, स्लोप इसका आया -3/c। निकाल सकते हैं y/3 इज इक्वल टू -x/c + 1, y इज इक्वल टू -3/cx + 3। तो -3/c आ गया। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां से देखेंगे c की वैल्यू आ जाएगी -3/c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू -3/4। c की वैल्यू आ गई -3/4। रख दीजिए यहां, इक्वेशन आ जाएगा x/c मीन्स -3/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। 3 एलसीएम आ जाएगा, -4x प्लस y इज इक्वल टू 3। -4x, ये माइनस ऊपर चला गया, +3। तो ये भी देखिए इक्वेशन वहीं आ गया ना, उसी फार बनना चाहिए। 4x माइनस y इज इक्वल टू -3, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। इसमें जब हम k की c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो ये इक्वेशन आएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू -3। दोनों में आप देखिए, जो अभी मैं बता रहा था a और b सेम होने चाहिए, तो a और b बाय द वे यहाँ सेम आ गए। अदरवाइज यह हो सकता है 8x माइनस 2y आ जाता तो 2 से डिवाइड करते, हो सकता है 12x माइनस 3y आ जाता तो 3 से डिवाइड करते, लेकिन लकली दोनों सेम आ गए। तो हम सीधे सीधे फार्मूला लगा दें। अब डिस्टेंस पूछा था c1 माइनस c2, c1 माइनस c2, c1 की वैल्यू 20, c2 की वैल्यू विद सिंबल लेंगे तो c1 माइनस c2 किया तो प्लस हो गया, कितना आ गया 23 अपान √16 प्लस 1 17, 23/√17 विल बी द आंसर। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। देखिए यहां पर 2-3 चीज कॉन्सेप्ट फिर यहां यूज किया। एक तो डिस्टेंस फार्मूला, अब पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। वहां एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान देना है कि द ax प्लस by इज द सेम। इट मे नॉट बी इक्वल, बट बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग or by dividing something we can make it equal and apply the formula c1 minus c2 upon √a square plus b square. First thing. Second concept, if line will pass from a point then it will be satisfied, वहां से b निकल गया। Third concept is this कि if the lines are parallel then their slope will be equal। तो स्लोप ऑफ L भी निकल गया, स्लोप ऑफ K भी निकल गया। स्लोप ऑफ K में C आया है, C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू रखते ही K का इक्वेशन बन गया। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस बिटवीन L एंड K हमारा आ गया। चलिए वन मोर क्वेश्चन आई विल गिव, अदर 6-7 वी विल डू। 13 is a straight line through the point 3, 4. Straight line passed through the point A 3, 4 is such that its intercept between the x-axis is bisected at A, then its equation is। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चलिए बता दे रहा हूं मैं। ये लाइन है, ये 0.34 है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 34 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस
एक्स एक्सिस को पी पर, वाई एक्सिस को क्यू पर कट कर रहा है, तो पी क्यू का मिड पॉइंट 3,4 है। पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। बाइसेक्टेड का मतलब मिड पॉइंट है, तुरंत आ गया। मिड पॉइंट इसका h प्लस 0/2 दैट इज h/2, k/2, h/2 that is h is a 6, k/2 that is k is a 8. Then I can find the equation x upon a x/6 plus y/b is equal to 1. But luckily the equation is not given in this form. If you go to the option, otherwise this is correct. Then what we'll do? LCM 24, 4x plus 3y is equal to 1. That is 4x plus 3y is equal to 24. This is the answer. Option is B. So I have solved majority of the question on these concept only. The remaining 6-7 questions are there. I hope this may be the given as a homework. Only 7 questions are there. 20 तक है. 13 I have solved to it. Next day we will start circle as well as parabola combined together. Whatever the questions will be asked, we will discuss to that one. Thank you.